डीनो मोरिया ने मुंबई की जनता को फिट करने के लिए लॉन्च किया नया फिटनेस प्रोडक्ट डीएम फिटनेस, जिसके जरिए लोग मुफ्त में सड़क पर स्थित इस सेंटर में जाकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसे लॉन्च किया बिपाशा बसु ने, जिनकी माने तो वो डीनो के आइडिया को सपोर्ट करने यहाँ आई थी। I think I'm here today not just for Dino. Dino is really, really dear to me, but I think the kind of idea that he's put forward, that he's getting fitness on the roads, it's like a big gift for the people in Mumbai. We are starting at Worli. I think it's such a big initiative because it's going to be free to all people. Anybody who's running down this stretch can come here, do functional training, do pull-ups, do their crunches, do anything. Something like this is it's existent in different countries. So it's a first time in India and first time in Mumbai. So I'm really proud of Dino that he's thought of it. वहीं डीनो का इस कंसेप्ट को आगे ले जाने का भी प्लान है। Well, yeah, the idea is to set up the fitness stations all over the city. We've got Mr. Sachin Nair to sponsor the first fitness station in Worli, and we hope to do a few more on this station. So the idea is people run, stop, exercise, run some more, exercise. So that's why, yeah, if we set this up all over, I will be the first one to use it actually. See the laser show? And there's a lovely laser show also. लेकिन बिपाशा के मुताबिक बॉलीवुड के किस सितारे को यहाँ वर्जिश करने आना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। मुझे लगता है बॉलीवुड में सभी खुले में वर्कआउट करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो डेफिनेटली एक्चुअली मैं भी चाहती हूँ कि मैं वर्ली में आके यहाँ पे दौड़ूं और एट द सेम टाइम यूज ऑल द फंक्शनल ट्रेनिंग ऑन द फिटनेस स्टेशन। वहीं बिपाशा के मुताबिक ऐसे प्रयासों की बहुत जरूरत है। मजा आ रहा है? जोर से बोलो वर्ली। थैंक यू फॉर हैविंग अस हियर। मैं आज एक्चुअली आई हूँ यहाँ पे एक डीनो का फर्स्ट फिटनेस इनिशिएटिव है, उसे लॉन्च करने, और मुझे लगता है इसकी बहुत ज़रूरत है हमारे देश में, हमारे सिटी में, दैट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फिटनेस। आप यहाँ पे दौड़ सकते हैं, it's such a beautiful place, Worli, and at the same time you can come and do some functional training on the DM Fitness, his first fitness station. Or I just want to thank you guys that to us and for years and years and years and accepting me as a part of Mumbai. And lots of love, and keep loving yourself, and do things for the city, and do things for your health, and do things for the people around you. Lots of love. Take care. मनीष चतुर्वेदी का कैलेंडर लॉन्च किया गया मुंबई की जुहू में, जहां पहुंची कई मॉडल्स। और यहाँ यूके से आई एक मॉडल ने कैलेंडर की तारीफ करते हुए मनीष के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। Okay, so when Manish asked me to be in the calendar, I was very flattered, and he let me know that I was going to be doing 3 different looks for the calendar, and I was really happy with all 3 of the looks, and I hope you guys like the calendar too. It was great fun. I mean, he's a very talented, very entertaining photographer. When you're working with him, he keeps you entertained, he keeps your spirits high, and it's good to be working with photographers like that, especially as a model, because sometimes the days go on really long, so it's nice to have somebody with that kind of energy. वहीं ये मॉडल अब हिंदी भी सीख रही है। I'm a model from the UK. I've been modeling for about 8 years in London and acting. I've been in India for about 8 months now. I've been taking Hindi classes. At the moment it's Tora Tora. Yeah, I'm taking Hindi classes. I'm learning Hindi. और उन्होंने हिंदी सीखने का कारण भी बताया। I decided to learn Hindi because I speak English and I speak Arabic, but I decided to learn Hindi because for picking up scripts it's a lot easier for me to be obviously doing it if I understand the language, and it's nice to be able to conversate with people. When you're in the country, you should learn the language that you're in, and I love the Indian culture, so for me it's like a pleasure. I love it. और तो और खुद को उन्होंने हिंदी में इंट्रोड्यूस भी किया। Yeah. Okay, I'll introduce myself again. मेरा नाम जास्मिन है। मुंबई के मलाड में स्थित डंपिंग ग्राउंड को खेल का मैदान बनाए जाने पर रखा गया एक भव्य समारोह, जहां पहुंचे बॉलीवुड के सितारे।
और यहाँ इस सितारों ने नेताओं की तारीफ करते हुए इस काम की सराहना की। सबको बहुत बहुत मुबारक। बंबई में जिस तरह के हालात हैं, सुन तो लो, फुटपाथ तक खत्म होती जा रही है, खेलने का मैदान तो दूर है। ऐसे हालात में लोगों के लिए खेल का मैदान मुहैया करवाना ये बहुत कमाल की बात है। और हम इसीलिए आए हैं मुबारकबाद देने असलम साहब को और मुख्यमंत्री साहब को और आप सबको। ये ग्राउंड आपका है, आप इसमें खेल जितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें आप खेलिए कूदिए और फलिए फूलिए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। असलम साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत बहुत मुबारक। इतने सारे लोग आए, मैंने इतने सारे लोग एक साथ कभी नहीं देखे, टीवी पे तो दिख जाते हैं। आए, मैं असलम भाई मेरे दोस्त है, मेरे भाई हैं, एंड इनके अंदर मैंने एक, इनकी सोल बहुत अच्छी है, इनका कलेजा बहुत ईमानदार है। इनकी एक आवाज पे हम दोनों भाई अपने सारे प्रोग्राम छोड़ के यहां आ गए हैं। और यकीनन मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये हम दोनों भाइयों की खुशनसीबी है कि हम इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हैं, सीएम साहब के साथ बैठे हैं, संजय भाई के साथ बैठे हैं। और मेरे को कुछ बोलना तो आता नहीं है, गाना बाद में सुनाता हूं। वहीं सुनील शेट्टी ने तो अपना एक डायलॉग भी सुनाया। मेरी तरफ से, हमारी तरफ से मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो मेरी फिल्म एक थी धड़कन, जिसमें डायलॉग में अंजलि को मारता था कि अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। आई थिंक आप लोगों की तरफ से ये संजय भाई साहब और असलम भाई को बोलना चाहिए कि जो काम वो लोग कर रहे हैं, इस इलाके में जो काम हो रहा है, उसके लिए आप लोगों की तरफ से कि संजय भाई, असलम भाई, हम तुम्हें भूल जाए, ये हो नहीं सकता, और हम आपको भूल जाए, ये भी नहीं हो सकता। और म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी साजिद वाजिद ने अपने गीत भी सुनाए। अक्षय कुमार एक बार फिर नजर आएंगे एक कौन के किरदार में अपनी अगली फिल्म स्पेशल 26 में, और इसकी प्रमोशन के लिए फिल्म के लीड एक्टर्स अक्षय और काजल ने मीडिया से बात करी। फिल्म को डायरेक्ट किया है नीरज पांडे ने, जो पहले अ वेडनेसडे बना चुके हैं। आइए अक्षय और काजल से जानते हैं उनके रोल्स के बारे में। ये एक रियल कहानी है और 1987 में ये घटना घटी थी। काफ़ी घटनाएं इसमें से जो 1987-86 में घटी थी, उन्हें साथ में लेके इस फिल्म को बनाया गया है। 3 साल लगे हैं मेरे डायरेक्टर नीरज पांडे जी को इस कहानी को लिखते हुए। काफ़ी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की और लिखा। जी, मेरा रोल जो है एक बहुत ही साधारण आदमी का रोल है और उसकी ज़िंदगी में कैसे भूचाल आता है, व्हाट हैपन्स टू अ कॉमन मैन एंड वेयर ही कैन गो, कौन से हद तक पहुंच सकता है, उसके ऊपर ये आधारित है और ये रियल कहानी है, तो ऐसा हुआ है। एंड दैट इज, मेरा नाम इस फिल्म के अंदर अज्जू सिंह है एंड दैट्स व्हाट इट इज। सिंघम के बाद दिस इज माय सेकंड मूवी और मेरे किरदार का नाम है प्रिया चौहान। ये बहुत ही भोली भाली इनोसेंट सी लड़की है, बहुत रिलेटेबल है। ऑफ कोर्स ये जहन में रख के मेरा कैरेक्टर डिजाइन किया गया है कि ये 80s की स्टोरी है, सो माय कॉस्ट्यूम्स, माय लुक, सब कुछ वैसे ही है। और प्लस ये एक स्कूल टीचर है, सो आई एम श्योर कि ऑडियंस में सब लड़कियां इस लड़की से डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगी। हर कहानी कुछ ना कुछ कहती है, सो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ स्पेशल 26? हर फिल्म की एक मॉरल ऑफ द स्टोरी रहती है। तो इस फिल्म के अंदर है, हम हिंदुस्तान के वासियों को, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग बहुत केयरफुल रहें आजकल, बहुत संभाल के रहें। बहुत जैसे कि जू पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं बोगस पुलिस के, बहुत सारे ये सब लोग अपने आप, मतलब घर पे अगर आप नौकर भी रखते हैं, वॉचमैन भी रखते हैं, बाई रखते हैं, उनसे ध्यान से उनका सब कुछ मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए।
ताकि यू शुड नॉट बी कॉन और यू शुड नॉट बी टेकन फॉर अ राइड. सो उस हिसाब से ये एक छोटा सा मॉरल ऑफ द स्टोरी. अक्षय के लिए नीरज के साथ काम करना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा. जी हाँ, उन्हें होमवर्क से छुटकारा जो मिला. बिल्कुल कोई होमवर्क नहीं किया, क्योंकि मेरे सारे होमवर्क डायरेक्टर साहब खुद करके आए थे. तो हमें सिर्फ क्लास में बुलाया जाता था, क्लास वर्क कराया जाता था. तो इसीलिए ऐसे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत सोच समझ के सारी न्यूज़पेपर्स, उस वक्त की कहानियां उस वक्त बराबर ऑथेंटिसिटी ला के और इस सबको पिरो के बराबर लेके आते हैं. अक्षय इस फिल्म में गाते हुए भी नजर आए, तो एक एक्टर के लिए सिंगर बनना ये कैसी रही अक्षय? गाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा. गाना बहुत ही वाकई में मैं जब रिकॉर्डिंग थिएटर पहली बार गया था, मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा था, गाली दे रहा था, मैं क्यों आया हूँ यहाँ, क्योंकि इतने रीटेक्स होते हैं, जरा सा सुर यहाँ चला जाए, सुर बराबर, अरे कौन सा सुर यार, कहाँ है वो सुर, हमें पता नहीं चलता. तो बहुत मुश्किल होता है. वो कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो बस बेवकूफ़ों की तरह खड़े हो जाते. लेकिन कोशिश की, और क्योंकि ये जो गाना था, ये गाना मुझे फिल्म के शुरू होने से पहले ही मिल गया था. 4-5 गाने पहले से रिकॉर्ड हो गए थे, उनमें से ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था. तो अमूमन आदमी गाड़ी में बजाता है, गाने सुनता है और जोर जोर से फिर गाने भी गाता है, चाहे सुर में गाए या ना गाए, क्योंकि उस वक्त कोई देखने वाला नहीं होता. तो एक बार मेरे डायरेक्टर ने ये देख ली बात और उन्होंने कहा कि चलो क्यों ना तू कोशिश कर गाना गा के. मैं बोला ठीक है, कोशिश कर लेते हैं. लेकिन मैंने ये साफ कह दिया था कि अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं अपने स्टार पावर यूज करके इस गाने को अपने निकाल दूंगा. प्लीज ये गाना आप नहीं रखेंगे, जिसने ओरिजिनली गाया वही बहुत बढ़िया है, आप कैसेट के अंदर नहीं रखेंगे. उन्होंने ये बात एग्री किया, तो फिर मैंने गाना गाया और मुझे भी अच्छा लगा. आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा और मैंने रहने दिया. अक्षय सिंगर बने, इसके अलावा क्या स्पेशल है स्पेशल 26 में? बहुत ही मतलब ये कह सकता हूँ कि सिंबल बहुत है इसके अंदर 26 का. वो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन ऑफ इट, बट इट इज रेलेवेंट व्हाट द होल थिंग इज, बिकॉज वो ऐसे 26 लोग हैं जो ये काम करते हैं. अक्षय ने इस मौके पर अपनी कुछ पुरानी यादें भी ताजा करी. आई थिंक ऑल एरास वर ग्रेट. 70s वाज ग्रेट. 70s का मेरे पास एक बकायदा एक मेरे दोस्त ने 70s की सीडीज बना के दी मुझे, जो सिर्फ बैकग्राउंड ही है. 70s का जो बैकग्राउंड होता था वो आज का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है उसके सामने. सो एवरी एरा हैड समथिंग टू ऑफर एंड एवरीबडी इज कैशिंग ओवर दोज एरास एंड पीपल वुड लाइक टू नो व्हाट यूज्ड टू हैपन इन 2013's वे. 80s की यादें ये हैं कि मैं एसएससी पास हुआ था 84 में, और मेरी यादें मैंने यादें मतलब अगर सिनेमैटिकली पूछा जाए तो मैंने हर फिल्म देखी है. मैंने आज तक कोई फिल्म नहीं छोड़ी. मैंने चाहे वो कांति शाह की हो, यश चोपड़ा की हो, या किसी की भी हो, मैंने हर फिल्म देखी है. एंड मेरी यादें 80s की थी कि कला मंदिर करके खेरवाड़ी में एक थिएटर हुआ करता था, वहाँ जाके देखता था. वो यादें हैं मेरी सिनेमैटिकली. पहले बादल बिजली बरखा एक थिएटर भी होते थे जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे. तो अब तो वो टूट गया है, कुछ और बन गया. सो आई हैव लॉट्स ऑफ गुरु कृपा के समोसे हुआ करते थे, मैंगो स्टिक होते थे. हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे होने पर शुरू हुई शो कॉमेडी का फिल्मी सफर, जिसमें दी जा रही है कॉमेडियंस को ट्रिब्यूट. वहां पहुंचे सतीश कौशिक और चंकी पांडे. अरे भाई तुमने बोला था तालियां पे आ जाना, तो जैसे ही तालियां बोला मैं आ गया. हमने जोरदार तालियां बजाएंगे, हमारे मेहमान के लिए जोरदार तालियां बजाइए. वो बड़ा कंफ्यूजन है यार. तुम बोल रहे हो तालियों पे आना, तुम बोल रही हो कि हमारे मेहमान के लिए जब जोरदार तालियां बजाएं. देखो मेरे को लगता है अब मेरे को तुमको डायरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना. तुम तो कर नहीं पा रहे हो, तो ऐसा करता हूँ कि मैं अपना सेल्फ एंट्री ले लेता हूँ. मेरी भी तो कोई सेल्फ एंट्री है, ठीक है ना. तो आज आपके सामने आ रहे हैं एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे मेहमान
जिन्होंने पता नहीं क्या क्या काम किया है, जैसे कि टाना ना ना ना, टाना ना ना ना। और यहाँ चंकी ने बताया कि वो क्यों इतना अपनी लुक के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं तो अपने आप को इन्वेंट करते रहता हूँ, लेकिन मेरे को ज्यादा इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है। भगवान जी ने मुझे इतनी अच्छी शक्ल दी है, लोग मुझे देख के ही हंसने लगते हैं। बट मैं अपने आप से बोर बहुत इजीली हो जाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा कुछ स्पेशली फेशियल हेयर या तो मुझे बढ़ा देता हूँ या कुछ दाढ़ी के साथ अजीब चीजें करता हूँ, बिकॉज आई फील अगर मैं अपने आप से इतने जल्दी बोर हो जाता हूँ, पब्लिक भी बहुत जल्दी बोर हो जाएगी मुझसे। वैसे मैंने हीरो के रोल्स किए हैं और हीरोज के स्कोप बड़े लिमिटेड होते हैं, वो इतने शरारती नहीं हो सकते। लेकिन जब मैंने ये कैरेक्टर्स किए जैसे कि राणा जंग बहादुर इन अपना सपना मनी मनी या फिर आखिरी पास्ता इन हाउसफुल 2, मुझे समझ में आया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ एंड आई कैन जस्ट से आई एम जोकिंग। तो आई एक्चुअली रियली एंजॉय दैट और मुझे लगता है आई थिंक ये सब कैरेक्टर्स मेरे अंदर बसे हुए हैं। वहीं अपने सफर के बारे में बताते हुए चंकी ने कहा कि वो अब वही रोल करते हैं जो बच्चों को पसंद आए। देखो मैं जब मैं आया था 87 में तो मेरे अच्छे फैंस थे, मैंने बहुत सी फिल्में की, जैसे आगिया मेरी पहली पिक्चर थी, पाप की दुनिया, तेजाब आई और फिर आई आंखें, वेयर आई थिंक द होल वर्ल्ड स्टूड अप एंड सेड ओके चंकी पांडे कैन डू कॉमेडी। गोविंदा के साथ था मैं और लोगों ने वो पिक्चर बहुत एंजॉय की, स्पेशली किड्स यू नो। उसके बाद मैं चला गया, बांग्लादेश में काम कर रहा था और एक गैप आया मेरे करियर में, और जब मैं लौट कर आया 2000 में टू वर्क अगेन, तो एक ऐसा वक्त आ गया कि छोटे बच्चे मुझे पहचानते नहीं थे। आई मीन बोलते थे यार ये है कौन, तो सब भूल गए थे मुझे। और मैं बच्चों को पकड़ के पूछता था कि आप मुझे नहीं जानते हो, आप अपने मम्मी को पूछो कि चंकी पांडे कौन है। मैं थोड़ा सैड फील करता था बिकॉज यू नो जब तक बच्चे नहीं पहचानते आपको तो फिर कोई नहीं पहचानता आपको, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग, यू नो दैट इज द मेन ऑडियंस, वो सबसे ज्यादा आवाज वही करते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो भी रोल्स करूंगा अभी, अगर कोई मुझे आके रोल सुनाए तो मैं अपने आप को 5 साल की उम्र का बना दूंगा और वो स्क्रिप्ट सुनूंगा या फिर वो कैरेक्टर सुनूंगा, और अगर मैं अम्यूज हो जाऊं तो जरूर बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो आई स्टार्टेड फाइंडिंग कैरेक्टर्स जो छोटे बच्चों को पसंद है। लेकिन चंकी को एक बात है जिसका बेहद अफसोस है। हाँ, अगर मेरे को कोई रिग्रेट्स है, मुझे आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला, बड़ा कोई अवार्ड नहीं मिला जैसे कि बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं ना आजकल, लेकिन मुझे लगता है मुझे ऑडियंस का रिवॉर्ड मिला है, सो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। बट एक आधा बड़ा अवार्ड मिल जाए तो मजा आ जाए, जैसे कि नेशनल अवार्ड वो कॉमेडी को मिलता नहीं है नेशनल अवार्ड। तो हाँ, ये दुख है आपको इस बात की, ऐसा कोई जॉनर नहीं है कॉमेडी? नहीं, होना चाहिए, कॉमेडी को मिलना चाहिए, ऑस्कर मिलना चाहिए, ना ही ऑस्कर मिलता है, ना ही फिल्म फेयर मिलता है, ना ही नेशनल अवार्ड मिलता है। तो आई थिंक हम लोगों को हंसाते भी लाइक डॉक्टर्स एंड आई थिंक हमें अच्छे अवार्ड भी मिलने चाहिए। वहीं उन्होंने इस नए शो की भी तारीफ की। आई थिंक मनोरंजन में जो मेन चीज है कि अगर आप लोगों को हंसाए और थिएटर में रौनक रहे, दैट इज व्हाट कॉमेडी इज ऑल अबाउट। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग कि फाइनली कॉमेडी फिल्म्स को बना रहे द पार्ट ऑफ द 100 years। और ये आई मीन कॉमेडी फिल्म जैसे कि पड़ोसन, आंखें, दीज ऑल क्लासिक, अमर अकबर एंथनी, क्लासिक कॉमेडी फिल्म्स। लेकिन तब भी अगर आप कोई बड़ी पिक्चर पकड़ो लाइक शोले, लाइक दीज आल्सो बिग फिल्म्स, बट शोले में भी कॉमेडी का बहुत कंट्रीब्यूशन था। आई मीन इवन दो इट वाज अ ग्रेट फिल्म, एक्शन फिल्म, एवरीथिंग, सो आई थिंक कॉमेडी इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन चंकी की फेवरेट कॉमेडी फिल्म और एक्टर कौन, ये भी उन्होंने बताया। अमर अकबर एंथनी, मुझे जॉनी लीवर बहुत पसंद है, मैं जब भी उनको देखता हूँ मैं बहुत हंसने लगता हूँ। पर आंखें से लेकर हाउसफुल तक चंकी ने क्या बदलाव देखा है, ये भी उन्होंने बताया। अभी मैं बेटर एक्टर हो गया हूँ, हाँ, और गोविंदा नहीं है मेरे साथ, लेकिन गोविंदा के सामने जो भी एक्ट करे वो गोविंदा उसको खा जाता है। पर आपने अपनी जगह बनाई। हाँ, मैं थोड़ा बच गया, मुझे लगता है उसको तरस आया मेरे ऊपर वरना उसने किसी को नहीं छोड़ा है। और साथ ही अपने निभाए गए फेवरेट किरदार के बारे में भी जानकारी दी। मुझे नेपाली का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, थोड़ी सी लाइनें हो जाए। ओ राणा जंग बहादुर, और एक सवाल पूछेगा तो मैं एकदम खोखरी लेके मोहर डालेगा तेरे को। सॉरी, मेरी आवाज बैठ गई। तो वो जो भाषा है वो नेपाली लोग ऐसे बात नहीं करते, ये भाषा मैंने खुद इन्वेंट की है, थोड़ा बंगाली मिक्स कर लिया और एंटरटेनिंग बनाया।
अमीषा पटेल ने काफी सालों के बाद फिल्म रेस 2 से वापसी की है और अब अमीषा पहली बार अपने अपकमिंग फिल्म देसी मैजिक में डबल रोल निभाती हुई नजर आएंगी। और अमीषा की माने तो देसी मैजिक में जब वी मेट और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे सक्सेसफुल फिल्मों का ब्लेंड देखने को मिलेगा। वी होप अमीषा कैन रियली मैच अप टू द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज टू फिल्म्स। जॉन ने 2003 में जिस्म फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री ली थी। इस फिल्म से जॉन काफी पॉपुलर भी हुए, मगर उसके बाद इनका जादू फिल्मों में कम ही चला। मगर अब रिसेंटली रेस 2 की सफलता ने जॉन को इनकी पहली हिट फिल्म धूम की याद दिला दी। जॉन को लगता है कि उन्हें शोहरत बहुत देर बाद मिली है। हम तो यही कहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। यूँ तो जावेद अख्तर बहुत सी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिख चुके हैं, मगर जावेद को लगता है कि हमारे समाज में हिंदी लैंग्वेज का स्थान बदलता जा रहा है, जिसका प्रभाव हिंदी सिनेमा पर भी पड़ने लगा है। जावेद का कहना है कि सोसाइटी और फिल्म्स को हिंदी और उर्दू भाषा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इम्तियाज अली को एक कामयाब डायरेक्टर कहना गलत नहीं होगा। अब इम्तियाज फिल्मों में ही नहीं बल्कि सैमसंग ब्रांड को इंडोर्स करते हुए भी नजर आएंगे, मगर अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई। अनुष्का शर्मा ने शाहरुख के साथ अपना फिल्मी करियर शुरू किया था और दोबारा नजर आई फिल्म जब तक है जान में। इस फिल्म के दौरान अनुष्का को शाहरुख को करीब से जानने का मौका मिला और इस बिजली को लगता है कि शाहरुख इज द मोस्ट रोमांटिक एक्टर बोथ ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन। Retro seems to be the mood in Bollywood. A number of young actors are grooving to their versions of V.R. Esther's evergreen numbers. One of them being Priyanka Chopra, who was spotted doing a perfect take on Sri Devi's "Kaante Nahi Katte Din Ye Raat" from Mr. India in one of her upcoming movies. ये तो सभी जानते हैं कि कटरीना कैफ को वेडिंग फंक्शंस में परफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, मगर सुनने में आया है कि हाल ही में एक बिग फैट इंडियन वेडिंग के लिए पहले करीना कपूर को सबसे ज्यादा पैसे ऑफर किए गए थे, मगर कुछ गेस्ट चाहते थे कि कटरीना उनकी वेडिंग पर परफॉर्म करें और इसके चलते बेबो की जगह कटरीना को मिल गई और इस बात से करीना काफी अपसेट भी हुई। एक्टर रवीना टंडन का कहना है कि हमें मेंटल और फिजिकल टॉर्चर के खिलाफ स्ट्रांगली आवाज उठानी चाहिए। रवीना ने अपने साथ हुए एक पर्सनल इंसिडेंट के बारे में भी बताते हुए कहा कि एक बार उन्हें टीवी रियलिटी शो में जज की भूमिका में इनवाइट किया गया था, जहां बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं थी और इसी दौरान एक लड़के ने उनसे छेड़छाड़ की और भद्दे भद्दे कमेंट्स भी पास किए और रवीना ने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद उस लड़के के साथ साथ उसके दोस्तों ने रवीना पर शराब की बोतल उड़ेल दी, मगर रवीना ने स्ट्रांगली इस सिचुएशन का सामना किया एंड शी थिंक्स कि हर किसी को ऐसा ही करना चाहिए। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि बॉलीवुड के ही मैन यानी धर्मेंद्र अपनी अपकमिंग फिल्म यमला पगला दीवाना 2 की शूटिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे, मगर अभी की खास खबर ये है कि धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उन्हें बस थोड़ी सी खरोच आई थी और रविवार को उन्होंने अपने बेटे बॉबी का 46 बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। रणबीर कपूर की पॉपुलैरिटी आजकल बढ़ती जा रही है। हाल ही में रणबीर को याले यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया गया है। फिलहाल रणबीर बेशरम की शूटिंग में बिजी हैं और अप्रैल में वो याले का रुख करेंगे। Noted actor Farooq Sheikh feels that the films today have advanced technically, but their lifespan is shrinking and the writing department is not getting more attention. इनका कहना है कि भले ही आज फिल्म्स टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हैं, पर कहीं न कहीं फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स पर से फोकस हट गया है। The 64-year-old actor says that writing should be paid utmost importance as they are the backbone of the film. इन्होंने ये भी कहा कि आज की फिल्म्स का लाइफ स्पैन बहुत कम है, फिल्म्स आती हैं और जाती हैं और इनमें कुछ भी मेमोरेबल नहीं। The veteran actor thinks that if the story is not good, songs and dance sequences are put in to grab attention. अक्षय कुमार रिसेंटली एक इवेंट पर गर्ल चाइल्ड के बर्थ को सपोर्ट करते नजर आए। इन्होंने कहा कि सरकार को स्कीम्स लॉन्च करनी चाहिए जिसके चलते families giving birth to girl child should get some financial support. The 45-year-old actor who became the father of a daughter in September 2012 said that the nation needs to promote the birth of a female child and a positive atmosphere for them to grow was required for a healthy society. Kajol looks terrific and confesses she has never felt more energetic. She has knocked off 16 kilos in the last couple of months thanks to a strict diet and exercise regimen and running after her 2-year-old son Yug. Kajol in her now svelte avatar can give any of the young girls in Bollywood a run for their money in the shape department. Not surprisingly, we heard a couple of big filmmakers were tailoring their scripts specifically with her in mind. Keep up the good work, Kajol.